ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਲੀਨੀਅਰ ਅਲਜੈਬਰੇ ਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਲੀਨੀਅਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਂਡ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਆਫ ਵੈਕਟਰ। ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਆ ਜੀ। ਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੈਕਟਰਸ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਵੈਕਟਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਟੌਪਿਕ ਪਲੱਸ 2 ਵਾਲਾ ਵੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜੋ ਕੰਸੈਪਟ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਜਿਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਪਲੱਸ 2 ਵਿੱਚ ਦੋ ਟਰਮਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਕੇਲਰਸ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੈਕਟਰਸ। ਸਕੇਲਰ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਜਿਹਦਾ ਇਕੱਲਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਵੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਜੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਲੱਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਲੋੜ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਵੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਲੱਸ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਵੈਕਟਰ ਲਈਏ। 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਅਤੇ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੈਕਟਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਸੀਗੇ ਆਈ ਵੈਕਟਰ ਪਲੱਸ 2j ਵੈਕਟਰ, ਆਈ ਕੈਪ ਪਲੱਸ 2j ਕੈਪ। ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਆਈ ਕੈਪ ਜੇ ਕੈਪ। ਆਈ ਕੈਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਅਲੋਂਗ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ, ਜੇ ਕੈਪ ਹੁੰਦਾ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਅਲੋਂਗ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ 3D ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜੀ ਆਈ ਕੈਪ ਪਲੱਸ 2j ਕੈਪ ਪਲੱਸ 3k ਕੈਪ, ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਆਈ ਕੈਪ ਮਾਈਨਸ 2j ਕੈਪ 4k ਕੈਪ। ਇਦਾਂ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ। ਹੁਣ ਆਈ ਕੈਪ ਜੇ ਕੈਪ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਹਾਂਗੇ 1,2। ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਆ ਕਿ 1,2 ਕੀ ਪਾਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਪਾਏ ਨੇ ਆਈ ਕੈਪ ਤੇ ਜੇ ਕੈਪ ਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ 2D ਵਿੱਚ 4,3 ਵੈਕਟਰ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ 4i ਕੈਪ ਪਲੱਸ 3j ਕੈਪ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇਦਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਰਡਰਡ ਪੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਪਲੱਸ 2 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗਾ ਆਰਡਰਡ ਪੇਅਰ। ਤੇ ਪੇਅਰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋ ਨੇ। 1,2 ਦੋ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ, ਪੇਅਰ ਦੋ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਆਰਡਰਡ ਪੇਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਫਰਕ ਪਵੇ। ਆਰਡਰ ਮੈਟਰ ਕਰੇ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਫਰਕ ਮਤਲਬ ਕਿ 1 2 ਹੋਰ ਵੈਕਟਰ ਅਤੇ 2 1 ਹੋਰ ਵੈਕਟਰ ਇਹ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸੇਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਜੀ ਆਈ ਕੈਪ ਪਲੱਸ 2j ਕੈਪ, ਇਹ ਬਣੇਗਾ 2i ਕੈਪ ਪਲੱਸ j ਕੈਪ। ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਜਿਸ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਂਗੇ ਫਰਕ ਪੈ ਜੇ, ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਡਰਡ ਪੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ 3D ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਸ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 1 2 3। ਤਿੰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਰਡਰਡ 3 ਟਪਲ। 3 ਟਪਲ ਮਤਲਬ ਕਿ 3 ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਟਪਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਆਰਡਰਡ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ, ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ -1 -2 4। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਇਸ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਵੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। 1 2 4 ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹ 3D ਤੱਕ ਹੋਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਵੈਕਟਰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ।
4D च भी आ सकते हैं। ये कोई फर्क नहीं पैंदा, मोस्टली अपन वैक्टर 3D वाले होणगे जी, जिस एक्स वाई जैड होवे यही आउणगे। जे इदां वैक्टर भी आ गए तो कोई फर्क नहीं पैंदा हैगा। मतलब जिहड़े वैक्टर्स ने ऑर्डर्ड पेयर आ सकते हैं, ऑर्डर्ड 3 टपल 3 आ सकते हैं, जिन्होंने कहने 1 2 3 4 ने, इन्हों कहने आपां ऑर्डर्ड 4 टपल। जिस तरह मर्जी वैक्टर आ सकते हैं, मोस्टली वैक्टर ऑर्डर्ड 3 टपल के होंगे। तो वैक्टर की जी नोटेशन हैगी वो इदा वैक्टर सिंबल यूज करनगे। ध्यान रखना कि वैक्टर एक तरीका होर है वैक्टर लिखण का मैट्रिक्स फॉर्म दे विच। ये गल्लां सारियां ध्यान रखनियां ने। ये वैक्टर नूं आपां एक रो पा लो मैट्रिक्स दे विच, ये दोने गल्लां इक्वल ने, सेम ही कहांगे। चाहे वैक्टर इदां ऑर्डर 3 टपल च पा लो जां रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किहड़ा हुंदा है जिस दे विच एक रो होवे, तो इन्हां दोनों का मीनिंग जो है वो सेम ही लैना आपां ने। जां और पा लो इत्थे इन्हां वैक्टर दी ओह कॉलम मैट्रिक्स भी लै सकदे ने। कॉलम मैट्रिक्स पाया होवे, चाहे रो मैट्रिक्स पाया होवे, चाहे एलीमेंट जिहड़े हैगे ने ऑर्डर 3 टपल दी फॉर्म च पाए गए होण, ये तिन्नां दा मीनिंग इक्को होਊਗਾ। ये भी वैक्टर है जी, ये भी वैक्टर है, ये भी वैक्टर है। आपां आई कैप, जे कैप, के कैप नहीं यूज करनी। तो वैक्टर दी 3 गल्लां कीतियां आपां ने, जां ऑर्डर 3 टपल दी फॉर्म च आऊगा, जां रो मैट्रिक्स दी फॉर्म च आऊगा, जां कॉलम मैट्रिक्स फॉर्म च। जिस तरह मर्जी आवे, तिन्नां दा मीनिंग आपां सेम लैना हैगा। ये तिन्ने वैक्टर ने। स्केलर की कहांगे आपां, इहदे विच स्केलर जिहड़े हैगे ने मोस्टली आपां रियल नंबर लवांगे। रियल नंबर मतलब कि 1 2 3 हाफ 0 -1 -2 ये सारे स्केलर कहांगे। जिवें 1 स्केलर, 2 स्केलर, 3 स्केलर, हाफ स्केलर, 0 स्केलर, -1 -2 ये सारे स्केलर लावांगे पहले च। तो मोस्टली इस चैप्टर दे विच आपां वैक्टर वास्ते जो जनरल सिंबल यूज करांगे, वैक्टर वास्ते जनरल ये लवांगे आपां V1 V2 V3 अप टू सोन Vn। ये सिंबल वैक्टर वास्ते यूज करांगे आपां। V1 वैक्टर, पहला वैक्टर V1, ये दूजा वैक्टर है, ये तीसरा वैक्टर है, ये nth वैक्टर है। वैक्टर वास्ते आपां V सिंबल यूज करांगे। स्केलर वास्ते मोस्टली यूज करांगे आपां α1 α2 α3 अप टू सोन α। जिवें ध्यान दे विच होवे, जिवें आपां वेरीएबल दे वास्ते वेरीएबल लई एक्स वाई जैड सिंबल यूज करते हुंदे आ, ते कॉन्स्टेंट वास्ते आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट वास्ते ए बी सी यूज करते। ये जस्ट आप एक तरीका बनाया है कि एक्स वाई जैड वेरीएबल ने ते आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट आप ए बी सी लैने हैगे। इसी तरह ही आप वैक्टर वास्ते सिंबल जिहड़े हैगे ने V1 V2 V3 Vn लवांगे, सिंबल ने जस्ट कल्ले। ते स्केलर वास्ते आप α1 α2 α3 αn सिंबल यूज करांगे। हुण इत्थों देख के टॉपिक शुरू करना आपां ने। वो देखो मैं जिन्नी के लोड़ से उन्ना काम करवाया, ज़्यादा नहीं करवाया हैगा वैक्टर का। ये दोने टर्मां बहुत इंपॉर्टेंट ने जी, लीनियरली इंडिपेंडेंट अते लीनियरली डिपेंडेंट। ध्यान रखना सैक्शन बी इस बुक का प्रॉपर तां समझ लगेगा जे ये 2 टॉपिक चंगी तरह पता ने। चलो डिफाइन कर रहे हैं। डेफिनेशन देखनी है पहला आपां ने। डेफिनेशन हजे प्रॉपर समझ नहीं आनी। आप जो डेफिनेशन मैं लिख रहा नमैरिकल देख के फिर आप डेफिनेशन समझांगे कि डेफिनेशन की कहती हैगी। पहली डेफिनेशन हैगी अपने को लीनियरली इंडिपेंडेंट वैक्टर्स। लीनियरली इंडिपेंडेंट वैक्टर्स शॉर्ट फॉर्म च पावांगे L, लीनियरली I इंडिपेंडेंट वैक्टर्स। ये किहड़े हुंदे?
पहला डेफिनेशन देख लो जी की होंदी हैगी है, फिर आप समझांगे डेफिनेशन की है। मैं लिखना पहला द वैक्टर्स v1 v2 v3 up to so on vn are said to be linearly independent, linearly independent if for alpha 1 v1 alpha 2 v2 alpha 3 v3 up to so on alpha n vn equal to o। ये o पाना जी, वड्डा पाना जी। ये वड्डा क्यों पाना आप देखांगे अगे। we have all scalars, alpha 1 equal to alpha 2 equal to alpha 3 equal to alpha n equal to 0। ये 0 पाना जी, इत्थे o पाना। ये क्यों पाना देखांगे आप, ध्यान रखियो। ये o पाना जी है, इत्थे 0 पाना। छोटा ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा। दूजा करना अपने है कि वो देखते हैं आप, फिलहाल नोट कर लो। लीनियरली डिपेंडेंट वैक्टर्स, इनू कहने आप एल लीनियरली डॉट डी डिपेंडेंट वैक्टर्स। ये शॉर्ट फॉर्म आ लिखने की। ये की है द वैक्टर्स v1 v2 v3 up to so on vn are said to be linearly dependent if there exists alpha 1 alpha 2 alpha 3 up to so on alpha n not all zero such that alpha 1 v1 alpha 2 v2 alpha 3 v3 plus alpha n vn equal to o। ये दो डेफिनेशन ने, ये पूरा टॉपिक इन्हों उपर है सारा। लीनियरली इंडिपेंडेंट से डिपेंडेंट चेक करना होगा अपने। ये डेफिनेशन कहती की हैगी आ, वो करते हैं आप। इस तो नाल एक होर टर्म आ रही हैगी आ, वो भी टर्म नोट कर लो। पहला वो पढ़ांगे फिर आ देखांगे आप। वो है जी अपने कोल लीनियर combination of vectors, शॉर्ट फॉर्म पावांगे L डॉट C, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। ये नाम देख के लग रहा कॉम्बिनेशन होंदा हैगा कंबाइन करना, इकट्ठा करना। कॉम्बिनेशन लीनियर कॉम्बिनेशन वाला की होंदा हैगा इफ v1 v2 v3 up to so on vn are vectors and alpha 1 alpha 2 alpha 3 up to so on alpha n are scalars, then alpha 1 v1 alpha 2 v2
alpha 3v3 up to so on plus alpha n vn is called linear combination of v1 v2 v3 up to so on vn। पहला ये देखते हैं बाद चो उपर आवांगे डेफिनेशन उपर। लीनियर कॉम्बीनेशन की हैगा वैक्टर्स कुछ वैक्टर ने ते कुछ स्केलर ने। आपने कॉम्बीनेशन ऑफ वैक्टर बनाना वैक्टर्स आपस च कंबाइन करने ने। लीनियर की हुंदा हैगा कि स्केलर मल्टीप्लाई करके फिर वैक्टर आपस च कंबाइन या जोड़ने ने। जिवें आ वैक्टर्स ने इनू स्केलर नाल मल्टीप्लाई किया, पहले वैक्टर ਨੂੰ स्केलर ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, पहले वैक्टर ਨੂੰ स्केलर ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ करता, दूजे वैक्टर ਨੂੰ स्केलर ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ करता, तीजे वैक्टर ਨੂੰ स्केलर ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ करता अल्फा 3 ਨਾਲ, अखीरले वैक्टर vn ਨੂੰ स्केलर ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ करता, फिर इन्हों कंबाइन करता। कंबाइन मतलब जोड़ता, तो इन्हों कहांगे आप लीनियर कॉम्बीनेशन ऑफ वैक्टर्स। इन्हों समझने वास्ते एक एग्जाम्पल ले रहे हैं आप। जिमें आप लीए आ दो वैक्टर्स ने भी, एक आह जी अपने को पहला वैक्टर एक ए वैक्टर, आ दो वैक्टर्स ने। लीनियर कॉम्बीनेशन बनाना अपने लीनियर कॉम्बीनेशन इज या लीनियर कॉम्बीनेशन की बनेगा, ये दोने वैक्टर नू किसी भी स्केलर नू, स्केलर की कहा सीगा स्केलर जेडे ने वो रियल नंबर ने, जेड़ा मर्जी रियल नंबर ले सकते हैं। इनू मान लो 1 ना मल्टीप्लाई करता जी, इनू 2 ना मल्टीप्लाई करता। ये की करे आपने आ दो वैक्टर सीगे, पहले वैक्टर नू स्केलर ना मल्टीप्लाई करता, स्केलर की लिया आप इस केस 1, दूसरे वैक्टर नू आप स्केलर नाल मल्टीप्लाई करता जी 2 ले लिया, इन्हों कंबाइन करता जोड़ता, इनू कहांगे आप लीनियर कॉम्बीनेशन ऑफ दीज टू वैक्टर्स। हम कंबाइन करना कि सिंपल है, ये मल्टीप्लाई कराना जी, मल्टीप्लाई 1 नू कल्ले कल्ले एलीमेंट नाल मल्टीप्लाई करांगे कितना होगा जी 1 2 3, ये 2 मल्टीप्लाई कर लो कल्ले कल्ले नाल, ये आएगा 2 -4 -8, तो जोड़ना किवें आ उदी जी कॉरस्पॉन्डिंग एलीमेंट जोड़ लो, ये 2 1 + 2 3 आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा, ये -5 आ जाएगा। हुणे कई दिमाग च गल आ सकती है कि लीनियर कॉम्बीनेशन स्केलर आप 1 2 क्यों लए ने, कोई होर भी तो लै सकते हैं। कॉन्सटेंट तुसीं जिहड़ा मर्जी लै सकते हो, जिन्ने भी आंसर बनणगे उन्हां सारिआं नूं आपां लीनियर कॉम्बीनेशन कहांगे। जिवें मान लो कई दिमाग च आऊगा तो ये लीनियर कॉम्बीनेशन आर, एक किताब बन गया जी। कई दिमाग च आऊगा कि इत्थे 2 लै लीए, आप इत्थे 0 लै लीए, जिहड़ा मर्जी नंबर लै सकदा रियल नंबर। सीधा कर रहा जी मैं, किवें कर रहा जी, इनू इहदे नाल मल्टीप्लाई कर रहा, इहदू इहदे नाल मल्टीप्लाई कर रहा, सीधा जोड़ रहा जी मैं। सीधा आप ऐड किया, ये आएगा 2 4 6, आ स्टैप पिछों मैं छड़ता जी, सीधा आ स्टैप लिखा जी, मल्टीप्लाई करके जोड़ता है। होर भी बन सकते कॉन्स्टेंट ये। तो लीनियर कॉम्बीनेशन जिहड़े हैगे ने ये बहुत सारे बन सकते हैं, क्योंकि स्केलर बहुत सारे ने। 1 2 लिया, 2 0 ले लिया, इत्थे हाफ लै लो, इत्थे 3 लै लो, जिहड़े मर्जी स्केलर मन्नी जाओ जी, वो सारे जिहड़े हैगे ने अपने कोल वो लीनियर कॉम्बीनेशन होंगे। मतलब ये दो वैक्टरां दे लीनियर कॉम्बीनेशन बहुत सारे बनणगे। तो देखोगे जिहड़ा मेन टॉपिक हैगा जी, ये क्वेश्चन देखने, 2 क्वेश्चन करवाने हैं जी, एक लीनियरली इंडिपेंडेंट का, एक लीनियरली डिपेंडेंट का। ये दोनों क्वेश्चन ध्यान ना देख लियो, जो दोनों समझ आ गए ये टॉपिक समझ आ जाएगा सारा।
बाकी के उपर बेस्ड आप होर भी न्यूमेरिकल देखांगे टॉपिक समझने वाले चंगी तरह। तो डेफिनेशन तुसीं लिख लिया होणगियां जी, ये मैं रब कर रहा। तो डेफिनेशन की स्टेटमेंट अपने वास्ते इंपॉर्टेंट है जी, या फिर दोबारा फिर लिख लवांगे आप। क्वेश्चन किमें आएगा वो देख लो, मैं स्टेटमेंट देख रहा जी। जिवें क्वेश्चन स्टेटमेंट देख लो की है, प्रूव दैट द सिस्टम ऑफ वेक्टर्स 1 2 -3 1 -3 2 2 -1 5 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। हुणे करने किवें ने वो देखना आपने। तो देखो क्वेश्चन करना आपने कि 1 ਇਹਦਾ तरीका ध्यान रखो, क्वेश्चन करने की मैंने 1 2 -3 1 -3 2 2 -1 5 ये वैक्टर्स ने तीन, इनू आपां लीनियरली इंडिपेंडेंट करना। तो कंसैप्ट की है, सब तो पहला आपां इनू स्केलर नाल मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेना। पहले बार अल्फा 1 नाल मल्टीप्लाई कर लेना जी, दूसरे बार अल्फा 2 नाल मल्टीप्लाई करना, तीसरे बार अल्फा 3 नाल मल्टीप्लाई कर लेना। ये मल्टीप्लाई करके इक्वल टू रखना आपां ओ। की कहा उन्होंने, मैं स्टेटमेंट लिख दवा जी। स्टेटमेंट की सी लीनियर इंडिपेंडेंट वास्ते तो लिखी होगी, पढ़ लियो ध्यान कि वैक्टर्स V1 तो लैके वैक्टर्स V1 तो लैके VNR इनू लीनियर इंडिपेंडेंट तां कहांगे इफ फॉर अल्फा 1 V1 अल्फा 2 V2 अल्फा 3 V3 up to son alpha and Vn equal to O, we have all scalars alpha 1 equal to alpha 2 equal to alpha 3 equal to alpha n equal to 0। ये डेफिनेशन कहती कि अपना आप देख लीए, ਇਹਦਾ नाम वैसे की रखे आपने जो टर्म बॉक्स के विच पहला नाम की रखे आप लीनियर कॉम्बिनेशन है जी। लीनियर कॉम्बिनेशन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ इक्वल टू 0 रखना, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ 0 ਵੈਕਟਰ है। ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ 0 ਵੈਕਟਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ O ਪਾਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ 0 ਵੈਕਟਰ ਹੋਊਗਾ जी, ਇਹ ਇਕੱਲਾ 0 होगा। ये फर्क है जी, जो सिंपल जी गल होर ये स्केलर है जी, जिहड़ा O पाया हैगा ये वैक्टर है, ये 0 स्केलर विच आ, ये 0 वैक्टर दे विच। हुण वैक्टर दे विच 0 का मतलब की हैगा, जिवें आह ऑर्डर 3 टप्पल ने 3D विच है वैक्टर I कैप J कैप K कैप। 0 वैक्टर की होगा, इनू 0 वैक्टर कहांगे, सारे 0 हों। इनू आपां O कहा होया, ये गल ध्यान रखनी है। मतलब इनू आपां नहीं कहा सीगा कि वैक्टर नू आपां ऑर्डर 3 टप्पल की फॉर्म लिख सकते हैं, ऑर्डर 3 टप्पल की फॉर्म लिख सकते हैं, तो ये होगा 0 0 0। ये सारे एलीमेंट 0 होणगे, इनू O कहा आपने, ये फर्क है जी। ये O की होगा 0 0 0। और गल ध्यान रखनी है, जे मान लो अपने को वैक्टर 1 2 ਅਤੇ 3 4 हो तो भी अपन अल्फा 1 ना मल्टीप्लाई कर लिया, अल्फा 2 ना मल्टीप्लाई कर लिया इक्वल टू O। इस केस O की होगा, वैक्टर तो देख के लेना अपने, वैक्टर की है 2D च ऑर्डर पेयर, तो नल 0 वैक्टर जो है वो भी फिर 2D च ही होगा।
जिस ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਟਰ ਨੇ ਉਸੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਕਟਰ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਇਹ 2D ਵਿੱਚ ਆ 2D ਚ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਜੇ 3D ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆਰਡਰ 3 ਟਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਰਡਰ 3 ਟਪਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਈਏ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੀਨੀਅਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਕਟਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈਕਟਰਾਂ ਦਾ, ਵੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੇਲਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੇਲਰ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ α1 α2 α3, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਨਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਲ ਵੈਕਟਰ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ α1 α2 α ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਸਪੋਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੇ 1 2 3 ਸਪੋਜ਼ ਕਰਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੈਕਟਰਸ ਆਰ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢਣੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਮਝਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਸਕੇਲਰ ਦੇ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ α1 2 α1 3 α1। ਅੱਗੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ α2 3 α2 2 α2। ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 2 α3 -α3 5 α3 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 0 0, ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਾਰਾ। ਐਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਉਦਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਐਡ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ, ਤਿੰਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਐਡ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਹ α1 ਪਲੱਸ α2 ਪਲੱਸ 2 α3 ਪਹਿਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਐਡ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੀ, 2 α1 3 α2 ਮਾਈਨਸ α3 ਆ ਗਿਆ। थर्ड -3 α1 2 α2 5 α3, ये ऐड कर लिया इक्वल टू 0 0 0। स्टैप ध्यान रखने सारे। इस तो कंपेयरिंग करनी है। कंपेयरिंग मतलब कि ये दोनों इक्वल ने, पहला पहले दे इक्वल होएगा, दूजा दूजे दे इक्वल होएगा, तीसरा तीसरे दे इक्वल होएगा। तो इत्थों आ गया α1 प्लस α2 प्लस 2 α3 इक्वल 0 पहला आ गया। दूजा आ गया जी 2 α1 3 α2 माइनस α3 इक्वल 0 आ गया। एंड ते तीसरा आ गया अपने को जी -3 α1 2 α2 5 α3 इक्वल टू 0। इदा तीन इक्वेशन बन जाएगी अपने को जी, तीन ही लभने अपने जिन्ना भी है ने इक्वेशनस बन जाएगी। हुण इहदे विच्चों आपां हुण α1 α2 α3 की वैल्यू फाइंड करांगे। उरे तक पहला आपां दोबारा देख लीए फिर अगे सॉल्व करांगे। क्वेश्चन की कहा सी आपां नूं, क्वेश्चन ये पुट कीता सी उन्होंने कि 1 2 3 1 -3 2 2 -1 5 इन्हां वैक्टर्स नूं आपां ने लीनियरली इंडिपेंडेंट चैक करना या प्रूव करना। आपां ने हुण करना कि लीनियरली इंडिपेंडेंट किवें करना हुंदा। सब तो पहला आपां ने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना, उन्हें इक्वल टू 0 वैक्टर रखना। ये लीनियर कॉम्बिनेशन है जी, पिछे पढ़िया आपां ने। सब तो पहला जिन्ने वैक्टर गिवन ने, 3 वैक्टर ने, इन्हूं α1 α2 α3 जिन्ने भी हैगे ने कोरसपोंडिंगली अल्फा नाल मल्टीप्लाई करना। पहला α1 नाल, दूजा α2 α3, एक होर हुंदा मान लो वैक्टर, उन्होंने α4 नाल कर लांगे। ये सारे मल्टीप्लाई करके इक्वल टू उन्होंने ऐड करके लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया। इन्हों इक्वल टू 0 रखना।
ਤੇ 0 बनना किदां दा है ਆਪਾਂ ने जिस फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਟਰ ਨੇ ਜੇ ਵੈਕਟਰ 3D ਵਿੱਚ ਨੇ ਤਾਂ 0 ਵੈਕਟਰ ਵੀ 3D ਚ बनना ਸਾਰੇ 0 ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ 2D ਵਿੱਚ ਨੇ ਤਾਂ 0 ਵੈਕਟਰ ਆਪਾਂ 2D ਚ बनना ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਪਲ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਫਿਰ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗਲੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾ ਐਡ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਇਦਾਂ ਐਡ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਨੇ आपस च कंपेयर करके इक्वेशनस बन जाएंगी हुण यह इक्वेशन आपने सॉल्व करनी है इनू सॉल्व करने वास्ते जो आप चैप्टर किया सीगा जी इक्वेशन वाला ये अपने कोल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया बाय यूजिंग रैंक मैथड नाल इनू सॉल्व कर लो बाकी तुहाडी मर्जी है जिस तरह मर्जी कर लो वैसे आप किया है कंसैप्ट रैंक मैथड वाला तो इन्हू मैट्रिक्स फॉर्म च बना के रो बाय रो 0 इनक्रीज करके इन्हू सॉल्व करांगे कितना आ रहा आंसर इन्हू सॉल्व करन तो बाद जिन्ने भी स्केलर आपां मन्ने ने किन्ने स्केलर मन्ने आपां इस केस एक अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 जे ये तिन्नां दी वैल्यू 0 आ गई फिर आपां कहांगे दीज वैक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट हुण इस तो बाद सारा पुराना काम हो गया जी जिन्होंने पिछला चैप्टर पढ़िया है ध्यान नाल जो लास्ट लैक्चर लाए ने अपने वो समझे हुए ने ध्यान नाल अगे सौखा ही है उन्हां वास्ते इन मैं रब कर रहा मतलब जो क्वेश्चन है उन्होंने आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कन्वर्ट कर ले सॉल्व करना आता ही है इन्हों सॉल्व कर लवांगे इन्हों मैट्रिक्स फॉर्म च लिख लवांगे जी ये बन गया 1 1 2 2 -3 -1 -3 2 5 ये आ गया एक्स वाई नहीं आऊगा इस केस वेरिएबल की ने अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ये अल्फा 1 आ गया अल्फा 2 आ गया अल्फा 3 आ गया इक्वल टू 0 0 0 इनू ऑपरेट करता आप R2 ते R2 -2 R1 R3 ते ऑपरेट किया R3 +3 R1 ये बन गया 1 1 2 2 -3 -1 -3 सॉरी ऑपरेट कर दो ये किया जी 0 हो गया -5 2 ना मल्टीप्लाई किया -5 ये 3 ना मल्टीप्लाई के ऐड किया 0 3 ना मल्टीप्लाई ऐड किया 5 3 ना मल्टीप्लाई के ऐड किया 11 बाकी चेक कर लियो जी ये आ गया अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 0 0 0 फिर दोबारा ऑपरेट कर देवांगे R3 ते R3 + R2 इन ऑपरेट किया बन गया जी दिस इंप्लाइज 1 1 2 0 -5 -5 0 0 6 ये आ गया अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 इधर ऑपरेट करांगे सारे 0 ही रहेंगे फिर इक्वेशन बनावांगे इस तो बाद जी इतों आ गया अपने को अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 +2 अल्फा 3 इक्वल टू 0 जो पिछे करते आ रहे हैं सारा -5 अल्फा 2 -5 अल्फा 3 इक्वल टू 0 6 अल्फा 3 इक्वल टू 0 इथों अल्फा 3 निकल गया जी 0 आ गया
ए च भर देवांगे वैल्यू, अल्फा 2 भी 0 आ जाएगा। ये दोनों वैल्यू चक के आप ए च भरांगे, इत्थों अल्फा 1 भी 0 आ जाएगा। देयरफॉर अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2 इक्वल टू अल्फा 3 इक्वल टू 0। मतलब जिन्ने भी आप स्केलर मन्ने सीगे उन्होंने सारे की वैल्यू 0 आ गई। जो सारे वैल्यू 0 आ गई फिर आप कहांगे देयरफॉर वैक्टर्स 1 2 -3 1 -3 2 2 -1 5 are linearly independent। बस यही काम है जी। जिन्ने भी आप लीनियर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन करने हैगे ने, सब तो पहला आप लीनियर कॉम्बिनेशन बनावांगे, उन्हें इक्वल टू 0 रखांगे, स्केलर लै लवांगे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, वो करके सारा सॉल्व करके इक्वेशनस बन जाएगियां जिवें आप पिछले चैप्टर में किया सीगा उदा सॉल्व कर लो। हुण जिहड़े बच्चे क्वेश्चन लास्ट लैक्चर बहुत ध्यान नाल पढ़िया है जी, ये होमोजीनियस टाइप है जी, ये हमेशा होमोजीनियस ही बनेगी। जिहड़े लीनियरली इंडिपेंडेंट वाले क्वेश्चन होणगे जां डिपेंडेंट वाले क्वेश्चन होणगे उहदे च हमेशा होमोजीनियस टाइप ही बनेगी, क्योंकि आप इक्वल टू 0 रखना होंदा इत्थे, ओ पाना होंदा इत्थे। जे आपां ने 0 रखना होंदा हैगा ये इधरले पासे, तो उन्होंने ध्यान दे विच होऊगा जो लास्ट लैक्चर आपां लाए हैगे ने वो दस्सिया सीगा कि होमोजीनियस नूं पूरा सॉल्व करन दी लोड़ नहीं हैगी हमेशा। जे ध्यान च होवे होमोजीनियस टाइप दे विच जे तां यूनीक सोल्यूशन आ रहा हैगा तो सीधा कढ सकदा कि आंसर यूनीक आ रहा, वो सीधा वैल्यू फाइंड कर सकते। मैं दोबारा बोल रहा, लास्ट लैक्चर में आपां कीता सी, लास्ट लैक्चर जिहड़े आपां लाए ने इस तो पहलां समझाया सीगा जे अपने कोल सोल्यूशन होमोजीनियस दे विच दो तरह के सोल्यूशन आते होंदे ने जी। जे तां आंसर इनफिनिट मैनी आ फिर तां प्रॉपर सॉल्व करना पैना आपां कट्टण वास्ते कि आंसर की आ रहा, पर जे आंसर यूनीक आ रहा तो बिना प्रॉपर सॉल्व किते भी आपां आंसर कढ़ सकते हैं, क्योंकि जे आंसर यूनीक आ रहा उसका नाम रखा सी आपां ने ट्रिवियल सोल्यूशन। लास्ट लैक्चर काम सारा किया आपने, इस पिछले लैक्चर सारा ही काम किया आपने। ट्रिवियल सोल्यूशन की होगा होमोजीनियस का कि अल्फा 1 पक्का 0 होगा, अल्फा 2 पक्का 0 होगा, अल्फा 3 पक्का 0 होगा। इन्होंने ट्रिवियल सोल्यूशन क्या सीगा। जे ध्यान दे विच होवे ट्रिवियल 0 सोल्यूशन जां यूनीक सोल्यूशन, ये सीधा बिना सॉल्व किते भी आपां चैक कर सकते हैं। वो किवें चैक किया सीगा, बाय यूजिंग डिटरमिनेंट। यह गल समझनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी। प्रॉपर तरीका तो वैसे आही है जिवें आपां कीता हैगा, पर इहनूं शॉर्ट फॉर्म च कन्वर्ट करना क्वेश्चन नूं आपां, वो ध्यान दो। शॉर्ट फॉर्म दिमाग च क्यों आ रही है, बिकॉज इहनूं सॉल्व करन दा शॉर्ट तरीका आपां लास्ट लैक्चर च पढ़िया सीगा लीनियर इक्वेशन दे विच। वो किवें सी, बस इहदा आपां डिटरमिनेंट कढ लवांगे। बस इहदा मैं करवा रहा जी अगे। नोट पा रहा, नोट पा लो। सैकेंड मैथड हो रहा सॉल्व करने का, तो देखोगे मैथड आप करांगे सौखा मैथड काफ़ी। हुण इत्थे तक पहुँच गए आप। हुण इहदा आंसर की किवें आ, वो किवें चैक करना, यूनीक आ रहा है कि इनफिनिट मैनी आ रहा। ये यूजिंग किया सी बाय डिटरमिनेंट मैथड। इस तो बाद अगे सॉल्व कर रहे हैं कि इहदे विच आपां ही करांगे ए दा डिटरमिनेंट बनावांगे। ए की लिया सी आपां ने कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, उहदा लवांगे आपां डिटरमिनेंट 1 1 2 2 -3 -1 -3 2 5। ये कट लो। ये क्यों कट रहे हैं देखो, ये आ गया 1 सॉल्व कर लेना, चाहे ऑपरेशन लगा लो वो पहला, सीधा सॉल्व कर लो, थोड़ी मर्जी है। -15 + 2 -13 -1 10 -3 7 2 4 -9 -5। ये आ गया -20 -30। बाकी चेक कर लियो, थोड़ी मोटी गलती भी देख लियो। ये नॉन जीरो आ गया। हूँ देखो जो लास्ट लैक्चर जिन्होंने अटेंड किया है
सुनिया है, कुछ फायदा है इस चीज़ का? ये बहुत फायदा हो गया अपने। फायदा किवें हो गया? जे अपने कोल होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होवे, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होवे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਡਿਟਰਮਿਨੈਂਟ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਪੱਕਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਯੂਨੀਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਆਊਗਾ ਪੱਕਾ? ਇਹ ਪੱਕਾ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਬਸ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਦਾ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਜ਼ੀਰੋ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ऑपरेशन लगा, जे पिछले क्वेश्चन में मैट्रिक्स बना के ऑपरेशन लगाए थे, ऑपरेशन लगाने की कोई लोड़ नहीं पई, अपने को सीधा ਇਹਦਾ आंसर जीरो आ गया। जो सीधा जीरो आ गया तो आप कहांगे देयरफॉर वैक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये वैक्टर्स की ने लीनियरली इंडिपेंडेंट। पहला की किया आपने, ये तरीका होर नाल ऐड हो गया। पहला आप तक पहुंच गए जी। इस तो बाद मैट्रिक्स फॉर्म च बनाने की लोड़ नहीं हैगी। मैट्रिक्स फॉर्म च ना बनाओ, सीधा असी ए का डिटरमिनेंट कढ़ लवो, ये नॉन जीरो आ गया तो भी आप कहांगे वैक्टर्स की ने लीनियरली इंडिपेंडेंट ने। एक तरीका आ हो गया। पहला तरीका भी ठीक है, मैट्रिक्स बना लवांगे, वो भी ठीक है जी, वो लंबा जाएगा थोड़ा जा। डायरैक्ट भी कर सकते हैं, इदा कर सकते, इदा भी हो सकता। एक तरीका होर है जो जमी सिंपल है जी, इस तो भी सिंपल है जी, वो करना आपने। उन्होंने करने वास्ते समझियो ध्यान नाल तरीका किवें। ये चीज़ कित्थों बनाई सी आपां, मैं शुरू तो शुरू कर रहा जी। यही आपां लिया सीगा जी अल्फा 1 1 2 -3, अगे लिया सी आपां अल्फा 2 1 3 2, अगे लिया सी आपां ने अल्फा 3 2 -1 5 इक्वल टू 0 0 0। इत्थों शुरू किया सी। इस तो पहला ये नोट पहला पा लियो, ये नोट दूजा पा लियो। इस तो बाद ये सैकेंड मैथड किया अपने, ये तीजा मैथड आ गया। आ वैक्टर ने अपने को, इन्हां वैक्टर्स नूं आपां चैक करना जी कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैगे ने। आ वैक्टर सीगे कॉमा पाए ने, ये किवें कीता सी आपां? पहलां आपां कंसीडर कीता सीगा जी। हुण ध्यान दिओ, समझिओ आपां मैथड किवें बनाउणा हैगा। आपां एक होर तरीका, सौखा तरीका बनावांगे, वो किवें जी? चलो ये तो चलो आपां प्रॉपर सॉल्व किया। लीनियर इंडिपेंडेंट किवें चैक करना हुंदा हैगा? पहला लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना जी, उन्होंने इक्वल टू 0 वैक्टर रख के इतों इक्वेशनस बननगियां, कंपेयरिंग करके 3 इक्वेशन बन जाएगियां। तो यह सौखा तरीका किया आपने कि इनू सॉल्व करने की बजाय, जिमें आप होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन किया सी, इनू सॉल्व करने की बजाय डिटरमिनेंट फाइंड कर लो। वो कला जे नॉन जीरो आ गया तो यदा आंसर पक्का 0 0 0 होगा, तिने जीरो होंगे। जो तिने जीरो आ गए तो आप कहांगे लीनियर इंडिपेंडेंट। हुण यह गल अपने वास्ते बहुत इंपॉर्टेंट आ तीजे मैथड वास्ते। जो तीजा मैथड कर लगे, ये है की आ, ये की आया, ये एलीमेंट कित्थों आए हैं? यह एलीमेंट जे गौर ना देखिए, यह पहला वैक्टर आ, गौर ना देखो जी, ये फस्ट वैक्टर इत्थे -3 सॉरी, ये पहला वैक्टर है जी, ये गौर ना देखो जी, ये दूजा वैक्टर आ, ये गौर ना देखिए आपां, ये तीसरा वैक्टर नहीं है। आप सैकेंड मैथड जो किया है वही देख रहे हैं। आप सैकेंड मैथड विच की सी, पहला आप लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया सीगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशनस बन गई सी, ये कोएफिशिएंट ले आपने डिटरमिनेंट फाइंड किया। आपने जिहड़ी गल समझानी हैगी आ कि ये जिहड़े कोएफिशिएंट ने अल्फा 1 दे, ये अल्फा 1 दे कोएफिशिएंट आए ने। ये अल्फा 1 दे कोएफिशिएंट की ने? गौर नाल देखो जी, ए नाल मल्टीप्लाई हो रहा अल्फा 1, एक बारी इन्ना मल्टीप्लाई हो रहा है, एक बारी इन्ना मल्टीप्लाई, आही कोएफिशिएंट नहीं आएंगे। पहला आया अल्फा 1, दूजा की आया 2 अल्फा 1, तीजा की आया -3 अल्फा 1। जेडे कोएफिशिएंट ने अल्फा 1 दे वो आही वैक्टर ने, आह वैक्टर ही है फस्ट, ये पहला वैक्टर ही है, ये दूजा वैक्टर है, ये तीजा वैक्टर। जे ये वैक्टर ही ने
जे आपां नूं पता है कि जिहड़ा ए बनेगा वो वैक्टरां दे वैक्टर ही बनणगे, फिर आपां नूं इन्ना काम लोड़ ही नहीं करन दी। फिर की करांगे आपां जी, सीधा करांगे कंसीडर ए दा डिटरमिनेंट की लवांगे। पता ही है कि जो आप इक्वेशन बनावांगे सीधे जिहड़े आह कोएफिशिएंट ने अल्फा 1 दे, ये पहला वैक्टर आऊगा, ये दूसरा वैक्टर आऊगा जी, ये तीसरा वैक्टर आऊगा, ये पता ही है। जे पता है आपां नूं तां इहनूं आपां ने डायरैक्ट सॉल्व कर लेना। ये सॉल्व किया कितना आ गया -30, ये नॉन जीरो आ गया, सीधा नॉन जीरो आ गया। देयरफॉर की कहांगे आपां, वैक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। जे नॉन जीरो आ गया तो तिन्ने स्केलर पक्का की होणगे जीरो। जे तिन्ने स्केलर पक्का जीरो होणगे तो इस केस विच वैक्टर्स की होणगे पक्का लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये क्वेश्चन छोटा है बन गया। हजे भी थोड़ा होर मॉडिफाई करांगे मैथड नूं आपां। पहली गल समझ लो कि आपां इत्थों आ लिखता वैक्टर ने अपने कोल, आपां एक मैट्रिक्स लिया और डिटरमिनेंट कढ लिया जी। ये किवें लेने, पहला वैक्टर पाता, दूजा वैक्टर पाता, तीजा वैक्टर पाता, डिटरमिनेंट कढ लिया आपां ने, ये नॉन जीरो आ गया। जो डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ गया, सारे स्केलर पक्का जीरो होणगे। दिमाग सोचे आपां ने, जे सारे स्केलर पक्का जीरो होणगे तो वैक्टर्स पक्का की होणगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये छोटा क्वेश्चन बन गया जी। 3 तरीके होए क्वेश्चन सॉल्व करने। थर्ड मैथड छोटा हैगा, जिहड़ा फर्स्ट मैथड किया हैगा वो हरेक वास्ते एप्लीकेबल आ। जिहड़ा सैकेंड ते थर्ड मैथड किया आपां ने, ਇਹਦੀ डिसएडवांटेज आ, ये हरेक वास्ते एप्लीकेबल नहीं हैगा, वो आपां देखना। पर हजे भी थर्ड मैथड ਦੇ ਵਿੱਚ थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है आपां ਨੂੰ। प्रॉब्लम किवें आ रही है कि वैक्टर हैगे इदां ने, पाए आपां इदां, ये याद रखना थोड़ा औखा लगदा कि इदां ਉਹ समझ के करोगे कि इदां क्यों पाए ने, बिकॉज अल्फा 1 ਦੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ इदां पैणगे। ये अल्फा 1 आऊगा, ये अल्फा 2 ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ, ये अल्फा 3 ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ। पर हजे भी यार रखना औखा लग रहा है कि वैक्टर इदां ने, पाए आपां इदां ने, हैगे रो वाइज ने वैक्टर, पाए आपां कॉलम वाइज ने। दूजा वैक्टर इदां पाया, तीसरा वैक्टर आपां इदां पाया। ये चीज़ भी आपां ठीक कर सकते हैं। किवें? ਇਹਦੀ बजाय ध्यान रखने गल्लां सारियां जी। ये कित्थों आई है? पहली गल ये कोएफिशिएंट्स तो आई है, जिहड़े आपां अल्फा 1 ते अल्फा 2, जिहड़ी हुण बनाउण लगे आ चीज़, वो देखो किवें है। एक 12th क्लास प्रॉपर्टी सी कि कोई मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जां उहदे ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट सेम हुंदा। ट्रांसपोज करन नाल डिटरमिनेंट नूं फर्क नहीं पैंदा हैगा। ट्रांसपोज करन नाल डिटरमिनेंट नूं फर्क कोई नहीं पैंदा हैगा। तो यह मैथड है थर्ड मैथड, इहनूं मॉडिफाई कर रहे हैं आपां। थोड़ा जिहा मॉडिफाई किवें कर रहे हैं, चाहे इहनूं और पा लो ये थर्ड मैथड में कि कंसीडर करांगे आपां ए कि सीधे वैक्टर पा लो 1 2 -3, अगे पा लो 1 -3 2, अगला वैक्टर पा लो 2 -1 5। ये दोनों गल्लां सेम होणगियां। सेम क्यों होणगियां? ट्रांसपोज बारे जे पता होवे, ट्रांसपोज की हुंदा हैगा, रो नूं कॉलम च इंटरचेंज करना। रो नूं कॉलम चेंज कर लो जां कॉलम नूं रो च कर लो, इस तरह मर्जी कर लो। ये पहली कॉलम नूं आपां रो च कन्वर्ट करता, देखो फर्स्ट रो बन गई, दूजी कॉलम सैकेंड रो बन गई, तीजी कॉलम थर्ड रो बन गई। ये ट्रांसपोज होया। ट्रांसपोज लैन नाल डिटरमिनेंट नूं फर्क कोई नहीं पैंदा। जे फर्क कोई नहीं पैंदा हैगा तां इक्को चीज़ आ। जे इक्को चीज़ हैगी आ तां की करांगे आपां, जे दोनों गल्लां इक्वल ने तो जिहड़े वैक्टर आपां ने चैक करने कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, वो वैक्टर सीधे लै लो, पहला दूजा तीजा, चाहे सीधे लै लो, ये अपनी मर्जी है। चाहे इहनूं इदां कॉलम वाइज पा लो, पहला दूजा तीजा, जिस तरह मर्जी पा लो। ਇਹਦਾ डिटरमिनेंट फाइंड कर लो। जे ये नॉन जीरो आ गया, सीधा कहांगे वैक्टर्स की ने अपने को लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये दो ये जिस तरह मर्जी कर सकते। ये मैथड ज़्यादा सौखा जी। मतलब अपने कोल कोई वैक्टर आप चैक करने कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, बस वो वैक्टरां नूं आपां वैक्टरां नूं मैट्रिक्स पा के पहला वैक्टर पाता,
दूजा वैक्टर पाता, तीजा वैक्टर पाता, और डिटरमिनेंट फाइंड कर लवांगे। ये नॉन जीरो आ जाएगा, जो नॉन जीरो आ गया फिर आप कहांगे वैक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। हुण एक गल समझण वाली है सारी, जो बच्चा ध्यान नाल पढ़िया होगा पता उन्हें पता लगूगा जी कि ये नॉन जीरो नाल आपां इंडिपेंडेंट किवें कहता, बिकॉज इहदे विच आपां ने होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कंसैप्ट यूज किया। इस करके प्रॉपर समझ रट्टा मारना सौखा ही है कि बस डिटरमिनेंट फाइंड करो जी जीरो आ जाएगा, पर समझो बच्चे को आऊगा जो पुराने लैक्चर प्रॉपर लगा रहा है और प्रॉपर होमवर्क कर रहा है, बिना होमवर्क तो समझ नहीं आना है जी। सो ये चीज़ अपने को ये आ गया। तो इतनों गल कही हैगी कि यदी डिसएडवांटेज है इस मैथड की, मैथड सैकेंड तो मैथड थर्ड की डिसएडवांटेज किवें हैगी आ, उहदे वास्ते एक मैं क्वेश्चन लै रहा है जी, वो देख लो। पर इदां दे क्वेश्चन अपनी बुक दे विच एक दो ही ने। तो देखो किवें कह रहा जी, क्वेश्चन मैं अपने वालों पा रहा जी। ये है 1 2 3 1 4 5 1 7 6 1 2 4। ये वैक्टर आप चैक करने ने कि आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये पूछे अपन क्वेश्चन मार्क या आर वैक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट कि ये वैक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट है। हुण इस केस दे विच प्रॉपर फर्स्ट मैथड की है कि इनू अल्फा 1 नाल मल्टीप्लाई करना, ये अल्फा 2 नाल मल्टीप्लाई करना, ये अल्फा 3 नाल मल्टीप्लाई करना, ये अल्फा 4 नाल मल्टीप्लाई करना इक्वल टू 0 वैक्टर। ये चार इक्वेशन पढ़ा के प्रॉपर सॉल्व करांगे। सॉल्व करने तो बाद जो चारे जीरो आ गई बाय यूजिंग रैंक वाला मैथड यूज करके, जो चारे जीरो आ गए फिर आप कहांगे वैक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। और दूजा तरीका की किया आप मैथड थर्ड की किया आपने, मैथड थर्ड किया हैगा कि सीधा वैक्टर नूं चाहे इदां पा लवो कॉलम वाइज, चाहे डायरैक्ट वैक्टर पा लो, सीधे वैक्टर पा लवो। जे सीधे वैक्टर पा लवांगे ਇਹਦਾ डिटरमिनेंट फाइंड कर लो, डिटरमिनेंट फाइंड कर। हुण जिन्ना बच्चों को पता होगा डिटरमिनेंट बारे कि डिटरमिनेंट जिहड़ा हैगा वो सिर्फ स्केयर का निकलदा, स्केयर मैट्रिक्स का। ये स्केयर तो है नहीं, स्केयर क्यों नहीं हैगा, रो 4 ने कॉलम 3 ने। स्केयर वो हुंदा जो रो ते कॉलम आपस में इक्वल होण, फिर ये बराबर नहीं आना हैगा। तो इस केस आपां डिटरमिनेंट फाइंड नहीं कर सकते, फिर ए वाला मैथड जो है इस केस एप्लीकेबल नहीं होना, फिर ये प्रॉपर ही सॉल्व करना पैना मैट्रिक्स रैंक वाले मैथड नाल। मतलब फिर गल की बन गई, जे 3 वैक्टर होंदे फिर सीगा, जे 3 वैक्टर होंदे फिर की बन गया, स्केयर बन गया। तो इसको इसनों आपां बाय यूजिंग डिटरमिनेंट सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो मैं थोड़े क्वेश्चन करवाने दे उपर लीनियरली इंडिपेंडेंट उपर। जो लीनियरली डिपेंडेंट हैगा वो आप नैक्सट लैक्चर देखांगे जी। अज फिलहाल लीनियरली इंडिपेंडेंट करना सी, डिपेंडेंट वाला काम थोड़ा जिहा देखने वाला ध्यान समझने वाला हैगा, वो नैक्सट लैक्चर विच करांगे आपां। जिवें ये क्वेश्चन किया उन्होंने, मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा तुसीं देख लो जी। शो दैट वैक्टर्स v1 1 2 0 v2 0 3 1 v3 -1 0 1 इन आर क्यूब हुंदा 3D हुंदा जी, ये 3D विच ने आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये शो करना अपने वैक्टर्स की ने अपने कोल जी 1 2 0 0 3 1 1 0 -1 0 1 ये वैक्टर्स ने। हुण सब तो पहला इस क्वेश्चन नूं तुसीं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 लैके जिवें रैंक वाला मैथड सीगा उदां असीं आप सॉल्व कर लेना क्वेश्चन। तुहानूं वो मैथड भी समझ आ जाए किवें, अदरवाइज मैं डायरैक्ट कर रहा हैगा कि कंसीडर किया आपां ने
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵੈਕਟਰ ਪਾ ਲਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਓ, ਰੋ ਵਾਈਜ਼ ਪਾ ਲਵੋ ਚਾਹੇ ਕਾਲਮ ਵਾਈਜ਼ ਪਾ ਲਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਓ। ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਡਿਟਰਮਿਨੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਕੁਏਅਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਥਡ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1 3 -2 1 ਅੱਗੇ 0 ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ 1 ਆ ਗਿਆ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਕੇਲਰ 0 ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਸਕੇਲਰ 0 ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਦੇਅਰਫॉर ਵੈਕਟਰਸ ਆਰ, ਇਹ ਵੈਕਟਰਸ ਆਰ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।